Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Hassan Khan, roll number D18CS72. My topic is about Ziegler-Natta catalyst reaction. So, reactions बताने से पहले, first of all, I am talking about the Ziegler-Natta catalyst. Who is Ziegler-Natta and what is prevention and what they was work about catalyst? A German chemist named Carl Ziegler in the year of 1950 first demonstrate the use of catalyst during the polymerization of ethylene. This catalyst consists of a mixture of alkyl derivatives of aluminum and titanium tetrachloride. While the reaction to be success, the method was extended to other olefins by an Italian chemist known as Giulio Natta. Based on his research on the mechanism of polymerization, he further developed different variations of the catalyst. Ziegler-Natta catalyst is a type of catalyst made from a mixture of chemical compounds that are mainly used in the synthesis of polymers belonging to alkanes, which are hydrocarbon containing a double carbon-carbon bond. Ziegler जो थे केमिस्ट थे हमारे 1950 के केमिस्ट थे जिन्होंने कैटलिस्ट बनाया पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन के लिए, क्योंकि इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत कम कैटलिस्ट हैं यूज होते थे, नहीं थे। अब उनके जो कैटलिस्ट था वो बेसिकली दो कंपाउंड से मिलते, एक को कंपाउंड था और एक मेन कंपाउंड था जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज करते थे और डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम ईथर वगैरह यूज करते थे एल्यूमिनियम के साथ। अब द डायरेक्शन जो उनका था, जो कैटलिस्ट बनाया वो सक्सेसफुल हुआ, तो इसी रिसर्च को उन्होंने आगे लेके जाते हुए गिलियो नाटा के नाम से एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब इन दोनों के बेस्ड ऑन दिस रिसर्च मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन फर्दर डेवलप। इसके बाद और भी ओलेफिन्स वगैरह के लिए आगे कैटलिस्ट में काम किया। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो था एक मिक्सचर हो गया था केमिकल कंपाउंड का, जो सिंथेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता था और अल्केन से बिलोंग करता था और हाइड्रोकार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, और जो उसके हाइड्रोकार्बन थे वो डबल बॉन्ड थे, एथीन डबल बॉन्ड थे, जिसे पाई बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं। इसी वर्क पे अब जिगलर नाटा ने जो इन्होंने काम किया, इस वर्क पे इस कैटलिस्ट बनाने पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1963 में। The Ziegler natta usually contains many mixture of halides belonging to transition metals like titanium, vanadium, chromium, zirconium, and organic derivatives of non-transition metal, especially of alkyl aluminum compound. बेसिकली जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के जो कॉम्बिनेशन था वो था TiCl4 में टाइटेनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। ये था हमारा जिगलर नाटा का कैटलिस्ट था। नाउ आई एम कम टू अब मैं इसको प्रेजेंटेशन जो रिएक्शन है असल में मेरा कैटलिस्ट रिएक्शन बतानी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। There are four steps from polythene to form polythene through Ziegler Natta catalyst। 4 स्टेप के थ्रू मैं बताऊंगा कि ये कैसे रिएक्शन हम वर्क करेंगे, रिएक्शन कैसे हो रही है। First step was about the activation of Ziegler Natta catalyst. Second is initiation. Third is propagation. Fourth is termination. The Ziegler Natta catalyst, the Ziegler Natta catalyst involves the data basically coordination of polymerization, which are generally include complexes that form between a transition metal and a pi electron from monomers. Polymerization usually takes place by insertion of monomers where the transition metal ions are attached to the end of growing chain. The incoming monomers are simultaneously coordinate at a vacant orbital site that are the formation of a long polymer chains. The carbon-carbon double bond is also inserted into the titanium and carbon bond at the active center. The chain growth polymerization finally entered into the final termination step where dead polymers are formed.
These reactions are also resemble to the ionic polymerization that lead to the formation of polymers. Activation of Ziegler-Natta. Here I am taking the compound or molecules. टाइटेनियम क्लोराइड लिया। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में हम देखते हैं तो टाइटेनियम के साथ 5 हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं और एक इसका वैकेंट स्पेस है। ऐसा में जो टाइटेनियम का जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा है, ये सरफेस मॉलिक्यूल है। जिस तरह से ये बीच में टाइटेनियम का है, इसी तरह हर Cl के साथ, हर क्लोरीन के साथ रिएक्टेंट में टाइटेनियम अटैच है और एक वैकेंट प्लेस खाली है। अब जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ ट्राइथाइल एल्यूमिनियम के साथ, तो मैं क्या करता हूँ इथाइलिन के साथ, तो एक ईटी में इसका इथाइल का एक ग्रुप बाहर रख देता हूँ ताकि आगे रिएक्शन समझाने में आसानी हो। अब यहाँ पे मुझे नोट कर्सर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा मसला हो रहा है, लैपटॉप ख़राब हो गया है मेरा। जो मेरा एक टाइटेनियम रिएक्टेंट में जो टाइटेनियम के साथ एक क्लोरीन है, वो मेरा क्या होगा, यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो इससे हट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, और जो इथाइल का है, टेट्राइथाइल के साथ जो एक हमारा इथेल है, वो हमारे टूट के वैकेंट स्पेस में आ जाएगा। जो वैकेंट स्पेस है वो इसमें आ जाएगा और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा, वो एल्यूमिनियम के साथ चल जाएगा। अब देखें प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आया है, जो वैकेंट स्पेस था, वैकेंट स्पेस में इथर ग्रुप जाके चुप इथाइलिन ग्रुप जाके चिपक गया, अटैच हो गया है, और जो हमारा क्लोरीन जहाँ से हमारा निकला, अब वहाँ पे क्या हुआ, वैकेंट स्पेस वहाँ पर आ गई। अब ये जो हमारा वैकेंट स्पेस और इथाइल ग्रुप के साथ जो हमारा टाइटेनियम अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। एक्टिव जिगलर नाटा भी कहते हैं, इसलिए हम इसको पार्ट को मैं नाम देता है एक्टिवेशन ऑफ जिगलर नाटा। सेकेंड स्टेप की तरफ आता हूँ तो वो होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन पे आते हैं तो इनिशिएशन पे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्ट लास्ट में जो निकाली उसमें जो है मेरा वैकेंट स्पेस था, अब मेरे पास क्या है, मैं प्रोपाइलिन बना रहा हूँ, मैं फॉर्म कर रहा हूँ, प्रोपाइलिन फॉर्म कर रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मैं इथाइल ग्रुप जोड़ूंगा, तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड है CH2, इसे हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं, पाई बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये लेकिन जाके ऐसी जगह अटैच नहीं हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन जो होती है, अटैच जो होता है वो अलग शेप में होता है। जैसे कि प्रोडक्ट में देखेंगे, जो वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस में ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जो हमारा है वर्टिकल पोजीशन में हमारा जाके अटैच हो गया। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट, इसको कहूँगा जो प्रोडक्ट नहीं तो ये जो हमारे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है, जो प्रोडक्ट बना है, उसको क्या कहूँगा मैं, पाई कॉम्प्लेक्स भी कहूँगा। अब इसको अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट में लिखूँ, ट्रांजिशन स्टेट में मतलब कि इसको इसके बॉन्ड को सही सीधा करूँ तो सही से लिखूँ तो मेरी इस शेप में आ जाएगा। जो मेरा पाइप बॉन्ड का एक क्लाउड बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक क्लाउड बॉन्ड जो था, वो मैंने क्या किया, डॉटेड फॉर्म में लिख दिया। और जो ईटी ग्रुप के साथ ईटी जो था, जो मेरा अटैच था, उसके जो बॉन्ड था वो भी डॉटेड फॉर्म में कर दिया। अब ये एक टी एच टी टी आई सी एच टू ई टी और टी आई, ये हमारे क्या, मैंने क्या बन गया, एक स्क्वायर टाइप बन गया। इसके जो बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर जगह, जो ईटी के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, डबल सिंगल बॉन्ड था, उसको क्या डॉटेड फॉर्म में लिख के मैंने आधे यहाँ आधा CH2 के साथ कर दिया। एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। और जो इसी तरह जो मेरा डबल बॉन्ड का क्लाउड बॉन्ड था, पाई बॉन्ड का क्लाउड बॉन्ड जो था, उसको इसको साथ निकाल के यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया, क्या कहते हैं, टाइटेनियम के साथ जो है, दो डॉटेड फॉर्म में आ गया। अब जब इंसर्शन होगी, अब इसको इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या हो रही है, इंसर्शन कर रहे हैं। इंसर्शन में हमारी क्या होगी, जो ऊपर मेरा एटी अटैच था, वो क्या हुआ, वो उसने अपनी जगह छोड़ दी, और वहां से क्या होगा, टाइटेनियम के साथ दोबारा एक वैकेंट स्पेस आ गई। और जो मेरा टाइटेनियम के साथ जो CH2 जॉइंट था, वो गया सिंगल बॉन्ड पे आ गया। सिंगल बॉन्ड के साथ जो मेरी एक चेन बन गई CH2 ET की। सही। अब ये मेरी क्या है, मैंने सिर्फ स्टेप को क्या पूरे स्टेप को नाम दिया इनिशिएशन का। ये होगा हमारी इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन के बाद थर्ड स्टेप आता है प्रोपगेशन का, सॉरी, प्रोपगेशन का। अब दोबारा मैंने जो बताया था, टाइटेनियम के साथ चार क्लोरीन के मेरे पास
अटैक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अटैच थे और एक वैकेंट स्पेस थी और एक CH2 ग्रुप अटैच था। अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे CH2 मैंने N तक ले लिया। अब मैं इसको 1 2 3 करके एक एक स्टेप करके बताते हैं इसमें डायरेक्ट इसमें N फॉर्म तक ले लिया। अब मैंने इसकी इंसर्शन कैसे की, मैंने इसमें ऐड कैसे कैसे कि जो मेरा CH2 अब दोबारा जैसे लास्ट टाइम की तरह वैकेंट स्पेस, जैसे कि इसमें वैकेंट स्पेस पे आके मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा अटैच हुआ था, इसी तरह अब यहाँ पर आके मेरा वैकेंट स्पेस पे CH2 मेरा अटैच हो गया। अब इसको दोबारा ट्रांजिशन स्टेट में कैसे लिखूंगा, जो मेरा पास सिंगल बॉन्ड था वो मैं डॉटेड फॉर्म में लिख के, और जो क्लाउड पाई बॉन्ड में जो क्लाउड फॉर्म और क्लाउड बॉन्ड था उसको मैंने डॉटेड फॉर्म में लिख के मैंने इसको CH2 से जो मैंने पहले हमारा अटैच हुआ था उसके साथ जाके इसके बॉन्ड जोड़ दिया। अब जिसको भी मैं क्या ट्रांजिशन स्टेट में मैंने लिखा है, ट्रांजिशन स्टेट में लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं आगे जाता हूँ तो क्या करते हैं, टाइटेनियम जो हमारा मेरे पास है वो जब उसकी फॉर्मेशन हो गई, हमारी चेन फॉर्म हुआ तो वो CH2। अब मैं CH2 से आगे हमारे क्या चार CH2 है, तो हमें मैंने क्या चार हमें CH2 लिख के, मेरे पास N फॉर्म में था तो मैंने इसको N फॉर्म में लिख के और ET से अटैच कर दिया। अब जो मेरे दोबारा से क्या हुआ, अब अब ये इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर CH2 जोड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ नीचे से CH2 की चेन बनाता, ये ऊपर से एक ही बात थी क्योंकि मेरे पास एक दोबारा वैकेंट स्पेस मिल रहा था। अब इसी तरीके से मेरे पास वैकेंट स्पेस मिलते रहेंगे जब तक मेरे पास कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग चेन तक चलेंगे, और फिर जब तक वैकेंट स्पेस रहेगी जो मेरा कैटलिस्ट रहेगा वो एक्टिव रहेगा, और इसी तरह जो रिएक्शन होते रहेंगी। अब लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा टर्मिनेशन का। अब जो मेरे पास टर्मिनेशन हो रही है, मैंने क्या इसमें क्या किया हुआ है, अब 1 सेकेंड, जो प्रोपगेशन में जो मेरे पास है, जो हमारे पास जो अटैच हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, इसमें सारे क्या है, हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमारे पास कंपाउंड अट्रैक्शन है हमारे पास उसकी शुरू हो रही है। अब इसी तरीके से टर्मिनेशन में जब मैं आ गया टर्मिनेशन में, मैं देखा तो टर्मिनेशन में टाइटेनियम के साथ जो मेरे पास एक वैकेंट स्पेस थी। अब CH2 में जो मैंने बना रहा था CH2 का, मैंने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बाहर लिख दिया क्योंकि क्योंकि आगे प्रोसीजर के लिए सेकंड CH2 जो हमारे बीटा बीटा पर है, अल्फा बीटा पर जो हमारा CH2 उसका एक हाइड्रोजन बाहर लिख दिया, और फिर उसका आगे चेन में सेम है। अब जो इसका H हाइड्रोजन जो था वो क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होके जो वैकेंट स्पेस थी बस टाइटेनियम के साथ वो जाके अटैच हो जाएगा, और जो मेरा CH2 अल्फा बॉन्ड के साथ CH2 था ये हमारा मेरा ब्रेक हो जाएगा, और ये मेरे पास एक आज क्या आ जाएगा, पॉलीथाइलिन बन गया मेरे पास। अब जब पॉलीथाइलिन बन गया, जो मेरा कैटलिस्ट था वो दोबारा क्या हो गया, TiCl4H हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब लेकिन इसको मैंने नीचे इसको बना के भी दिखाया कि अभी भी है इसमें वैकेंट स्पेस है, इसका मतलब मेरा कैटलिस्ट जो है एक्टिव है, और इस एक्टिव कैटलिस्ट है, इसके और भी आगे रिएक्शंस हो सकते हैं मेरे पास मोनोमर्स के लेके और पॉलीथीन बनाने के लिए और पॉलीमराइजेशन के लिए। ये जो था मेरा रिएक्शन थी एक पॉलीथाइलिन की, जिगलर नाटा रिएक्शन की। अब आगे इसके अगर थोड़ी सी मैं ज़रा सी आखिर में ख़त्म करते हुए फिर लिमिटेशन बता दूँ। So if you're talking about the Ziegler-Natta limitations, Ziegler-Natta polymerization has some limitations, as it does not work for some monomers product like polyvinyl chloride, poly-PVC. Polyvinyl chloride के लिए बिल्कुल भी ये काम नहीं करता and cannot be generated by the Ziegler-Natta polymerization. Acrylates are also another example of the limitation of the Ziegler-Natta catalyst reaction. So here I am ending my presentation. Thank you so much.